Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all in my class. Yesterday we people had started with Jinnah's vision of Pakistan and we had done half part of the speech yesterday. So remaining part of the speech will be completed today inshallah. Let's recapitulate that what you people had done yesterday. You have read about Quaid-e-Azam Muhammad Ali's inaugural speech that he delivered on 11th August 1947 to the Constituent Assembly of Pakistan, and that was his presidential address. And yesterday, the last paragraph that we have read, that was about the evils about which Quaid-e-Azam Muhammad Ali talked of, that was of nepotism and jobbery. He was not in favor of these evils. He was of the view that these are the poisons for any society. So wherever and whenever it would be found in Pakistan, in any institution, high or low, in any community, that would be dealt in a very serious way. So he was not ready to countenance it. He was not ready to allow it. So let's continue with the rest. So girls, I hope that you people had taken out your books and you people will read along with me. And during the reading, what you people have to do, you have to underline all the difficult words that you do not understand, or all the difficult lines that are not clear to you in the lecture, that you can ask on your WhatsApp group. So I know that there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now that it has been accepted, it is the duty of every one of us to loyally abide by it in honourable act according to the agreement, which is now final and binding on all. But you must remember, as I have said, that this mighty revolution that has taken place is unprecedented. Now Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, he told to the people, and the people, they already knew this thing, that many people in India and Pakistan, they were not in favor of this partition, और इस division of India के वो सख्त खिलाफ थे, and partition of Bengal and Punjab was also done. So people were not in favor, either they were Hindus or Muslims. They did not favor this partition, and much has been said about it. But what he said, what he advised, that as it has been done, division has been done, partition has been done, so it is our duty to accept this division. And then secondly, what did he say, that हमारे हर एक के लिए क्या है, ये ज़रूरी है, हम सब पे ये लागू है कि हम जो है पूरी वफादारी के साथ इस पर कायम रहें. Right, we have to accept it loyally and honorable act according to the agreement, which is now final and binding on all. और क्या करें, हम इस मुआहिदा का एहतराम करें. ठीक है, we have to respect that agreement that is now final, and that is that every one of us should accept it. And then you must remember, as I have said, that this mighty revolution that has taken place is unprecedented. फिर उन्होंने साथ में क्या किया, उनको रिमाइंड कराया कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये एक रेवोल्यूशन था, दैट वाज अ बिग रेवोल्यूशन, एक इनकलाब था, और ये इनकलाब क्या था, अनपैरेलल्ड था, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है. दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल रेवोल्यूशन. So Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, in his speech, he addressed to the Constituent Assembly, members of the Constituent Assembly, and through them he was telling to the world that this partition was not acceptable for the many people who have been living in India, either they were Muslims or Hindus. They did not agree with this partition of Punjab and Bengal. They were against it, and much has been said about it. But when it was done, then one should accept it loyally, and one should give respect to this agreement, and it is our duty to act accordingly. So he wanted the people to accept this revolution, as this revolution is unparalleled. Okay, one can quite understand the feeling that exists between the two communities
wherever one community is in majority and the other is in minority. But the question is whether it was possible or practicable to act otherwise. That has been done. अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डेफिनेटली एक चीज़ जो बहुत क्लियर थी कि मुस्लिम्स दे वर इन माइनॉरिटी एंड द हिंदूज दे वर इन मेजॉरिटी, एंड वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड द फीलिंग बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज़ where one is a large in number and the other one is small in number. अब जो क्वेश्चन होना चाहिए था, जो क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इसके अलावा कोई और डिसीजन पॉसिबल थी, वाज दैट प्रैक्टिकेबल टू गो अदरवाइज. मतलब अगर हमें एक सेपरेट कंट्री ना हासिल करते तो इसके अलावा कोई और सोल्यूशन हमारे पास मौजूद था. सो कायद-ए-आज़म, he was of the view that division has to take place on both sides. In Hindustan and Pakistan, there are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my judgment, there was no other solution, and I am sure that the future history will record its verdict in favor of it. Yes. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, कहते हैं कि भी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में देयर वर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल who may not agree with this partition. Many Muslims who love India, who wanted to live over there because they had the properties there, they had the association with the land, with the country, they did not agree with this partition, and many did not like it. But according to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, there was no other solution, and he said that future history will record its verdict. Yes, जो क्या है, जो मुस्तकबिल की जो तारीख़ है वो इस चीज़ को, इसकी हमायत में अपना फ़ैसला सुनाएगी. एंड वी कैन सी दैट yes, he was right, that history has given the verdict in favor of it. Right now we can see the condition of the Muslims in India, so they cannot own their own country. So that's why he said that future history will record its verdict in favor of it. कि जो आने वाला दिन है, जो मुस्तकबिल है, वो बताएगा कि जो कुछ मैंने कहा उस चीज़ की गवाही देगा. एंड व्हाट इज़ मोर, इट विल बी प्रूव्ड बाय एक्चुअल एक्सपीरियंस एज वी गो ऑन दैट इट वाज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम. Any idea of a united India could never have worked, and in my judgment it would have led us to terrific disaster. अगर हम मुत्तहिदा इंडिया का ही जो है वो प्रचार करते रहते और एक ही इंडिया में रहने की जो है वो उस पर वर्किंग करते, तो डेफिनेटली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल था कि मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो एंड होता है वो एक डिज़ास्ट्रस होता. सो इसके आइनी मसले का वाहिद हल यही था कि इंडिया के दो हिस्से होते और पाकिस्तान जो है वो इट शुड केम इनटू एग्जिस्टेंस. All the same, in this division it was impossible to avoid the question of minorities begin in one dominion or the other. Now that was unavoidable. कायद-ए-आज़म का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यूनाइटेड जो है इंडिया, दिस आइडिया कैन नॉट वर्क, ये काम कर ही नहीं सकता था. राइट. सो लाइक इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज़, अब माइनॉरिटीज़ तो मौजूद थी. अब इस डिवीज़न में मतलब दो डोमिनियंस बनी, दो स्टेट्स बनी, एक इंडिया बन गया, दूसरा पाकिस्तान बन गया. It was impossible to avoid the question of minorities begin in one dominion or the other. Now that was unavoidable. So कायद-ए-आज़म जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में थे कि भी अक़लियत का जो सवाल है उससे हम अवॉइड करें, ये नामुमकिन था. मतलब ये दोनों रियासतों में ये जो क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी था दैट वाज देयर, और इससे बचना नामुमकिन था और इसका कोई हल नहीं था. सो अब हमें क्या करना चाहिए? देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन नाउ. व्हाट शैल वी डू नाउ? इफ़ वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वी शुड होली एंड सोली concentrate on well-being of the people, especially of the masses and the poor. If we will work in cooperation, forgetting the past, burning the hatchet, you are bound to success. कायद-ए-आज़म ने यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें की जो पाकिस्तानियों के लिए दैट वाज द की टू सक्सेस. उन्होंने कहा
कि अक़लियतों की जहाँ तक क्वेश्चन था वो दोनों स्टेट्स में इस क्वेश्चन से बचना नामुमकिन था, इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें पाकिस्तान को वी हैव टू मेक इट अ ग्रेट स्टेट, वी हैव टू मेक इट प्रॉस्परस, वी हैव टू मेक इट हैप्पी, एंड दैट कुड बी डन ओनली एंड ओनली व्हेन वी कंसंट्रेट ऑन द वेलबींग ऑफ द पीपल, स्पेशली किन लोगों की वेलबींग के लिए? हमें ख़ुसूसन आम लोगों की और गरीबों की जो है वो वेलबींग के लिए काम करना है। वी शुड वर्क टुगेदर, वी शुड फॉरगेट द पास्ट एंड वी शुड बरी द हैचेट। जो कुछ हो चुका, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। व्हेन वी विल फॉरगेट द पास्ट, देन वी आर बाउंड टू सक्सेस। सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं? इफ़ वी चेंज आवर पास्ट एंड वर्क together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first, second and last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make. Okay, what he says over here, if you change your past and work together in a spirit, means फुल जज्बे के साथ अगर आप क्या करेंगे, अपने माजी को भुला देंगे, इकट्ठे मिल के काम करेंगे, तो मतलब वट एवर द कम्युनिटी यू बिलोंग, अब माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में है, या आपका जो है क्या रिलेशनशिप है, what was the relationship of that person with you in the past, हमें इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देना है. We need not to bother this thing that the people who had been working together, are they of same color, are they of same caste or creed, उनकी जो है वो ज़ात एक है, वो रंग नस्ल एक है. हमें सिर्फ ये देखना है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी, द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू कंसंट्रेट, एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू कंसंट्रेट, दैट दे आर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड दे हैव इक्वल राइट्स, दे हैव इक्वल प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस. So what we have to do, we have to stand together, forgetting all about the past, forgetting all about our caste and creed, forgetting all about our community. हमें नहीं देखना है कि किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें नहीं देखना है कि भी क्या कलर है, क्या कास्ट है, क्या क्रीड है. हमें सिर्फ ये देखना है कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट, वी हैव इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस. हमारे हकूक़ एक जैसे हैं, हमें आसाइशें जो हैं वो प्रिविलेजेस जो हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक तरह से मिल रही हैं. हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशंस हमारे पर सब पे एक तरह से एक ही तरह से लागू होती हैं. तो जब हम ये बात समझ लेंगे, इक्वालिटी समझ लेंगे, तो फिर डेफिनेटली वी आर बाउंड टू सक्सेस. I cannot emphasize this too much. We should begin to work in that spirit, and in the course of time, all these angularities of the majority and the minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis, and so on. So, and among the Hindus, you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, and Bengalis. Madrasis and so on will vanish. He said that I cannot emphasize it too much. मतलब my point of view is to stand together and to be treated equally. तो कहते हैं इसको मज़ीद emphasize करने की ज़रूरत नहीं है. So we should begin to work in that spirit. किस जज्बे के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ये जितनी एंगुलरिटीज़ है, जितने भी इख्तलाफात हैं, जितना भी जो डिफरेंसेस हैं, डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, वो क्या हो जाएंगी ऑफ मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी कम्युनिटीज़. मतलब जो अक़लियत में हैं, जो अक्सरियत में हैं, उनके दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं वो पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे. मतलब हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, बिकॉज इवन एज रिगार्ड्स मुस्लिम्स यू हैव पठान्स. जैसे मुसलमानों में मुख्तलिफ जो हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट जो है वो एरिया वाइज जो है वो ग्रुप बने हुए हैं. जैसे पठान है, पंजाबीज़ हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सो ऑन है. इसी तरह से हिंदुओं में भी ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, खत्रीज़ हैं, बंगालीज़ हैं, मद्रासीज़ हैं.
कहते हैं ये जो डिफरेंसेस है ना कि भाई वो पठान है, ये पंजाबी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, या ये ब्राह्मण है, कहते हैं दैट डिफरेंसेस अमंग द पीपल दैट विल वैनिश, ये सब तबकात का डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा. Okay, let's move further. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. ओके, डेफिनेटली कायद अज़म का विजन तो जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो थ्रू आउट ये था कि ये जो डिफरेंसेस हैं, दीज आर द बिगेस्ट हिंड्रेंसेस टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. So we would have been a free people long ago. No power can hold another nation, especially a nation of 400 million souls in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time. But for this, therefore, we must learn a lesson from this. You are free. You are free to go to our temples. You are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. चलिए जी, कायद अज़म क्या कह रहे हैं कि कोई भी ताकत किसी दूसरी कौम को गुलाम नहीं रख सकती है, और ख़ास तौर पे जब 400 मिलियन इंसानों की बात आए तो फिर तो कोई भी आपको फतह नहीं कर सकता है. और अगर ऐसा हो भी जाता तो कोई भी आप लोगों को देर तक अपने अंडर कंट्रोल नहीं रख सकता था. और इसलिए हमें इन सब बातों से सबक सीखना चाहिए. हमें ये सीख लेना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम हैं, हमें हर जगह जाने की इजाज़त है. हम पाकिस्तान की फ़ज़ा में रहते हुए आइदर वी आर हिंदू, तो हमें टेंपल्स में जाने की इजाज़त है, और अगर हम मुसलमान हैं तो हमें जो है वो मस्जिदों में जाने की इजाज़त है. तो हमारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी भी ज़ात या अक़ीदे से है, इसका रियासत के मामलात से, स्टेट के मैटर से कोई ताल्लुक़ नहीं है. So what he wanted to emphasize over here, he said that freedom and independence के लिए जो है ये जो डिफरेंसेस हैं, ये कास्ट एंड क्रीड का जो मसला है, दीज आर बेसिकली जो एक हिंड्रेंस होता है टुवर्ड्स द फ्रीडम. सो कहते हैं कि हम जो है वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है काफ़ी अर्से पहले जो है वो इन सारी चेन से आज़ाद हो जाते, और क्योंकि एक नेशन दूसरे को काफ़ी मतलब ज़्यादा अरसे तक नहीं होल्ड कर सकती. और जब ये क्वेश्चन बात हो 400 मिलियन पीपल की जिनको उन्होंने अपने ज़ेरे तसल्लुत रखा हुआ था, तो वो इतना लंबा अर्सा एक कौम को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल रखना, दैट इज़ इम्पॉसिबल. सो कहते हैं हमें पास से लेसन लर्न करना चाहिए कि भी मजहबी आज़ादी जो है वो लोगों को होनी चाहिए. चाहे कोई मुस्लिम है तो उसको मस्जिदों में जाने की इजाज़त होनी चाहिए, और इसी तरह से कोई हिंदू है तो उसको टेंपल्स में जाने की इजाज़त होनी चाहिए. और जो किसी का मज़हब का जो है ताल्लुक़ जो है वो स्टेट के मामलात से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है. Now I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in the course of time Hindus will cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. अब क्या कि भी वो क्या कहते हैं कि भी मेरा ख्याल है कि हमें इसे अपने सामने बतौर मिसाल रखनी चाहिए. और ही वॉज ऑफ द व्यू कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो हिंदूज़ जो हैं वो हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान नहीं रहेंगे. अब इस बात से कायद अज़म का क्या मतलब था? लेट्स कंप्लीट द पैराग्राफ देन आई विल एक्सप्लेन. कहते ये मैं रिलीजन सेंस में नहीं बात कर रहा, रिलीजियस की सेंस में नहीं, रिलीजन की सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हर एक फ़र्द का ज़ाती अक़ीदा है. और लेकिन सियासी एतबार से क्या है, एक हम सब जो हैं एक रियासत के शहरी होने हैं, तो हमें जो है वो ये डिफरेंसेस ख़त्म करने हैं. अब इससे पहले क्या था, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात थी. इन यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों को जो है उनकी मजहबी आज़ादी नहीं थी, दे कैन नॉट लिव अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, और हिंदूज़ दे आर मोर अथॉरिटेटिव ऑन देम इन ऑल सेंसेस. सो यहाँ पे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये मुल्क आप सबका है, आइदर यू आर इन माइनॉरिटी और इन मेजॉरिटी, आइदर यू आर हिंदू और यू आर मुस्लिम. आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये मुल्क आपका है.
और जब आपका है और आपको आपके टेम्पल्स में जाने की, आपकी मस्जिदों में जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब आपको मजहबी आज़ादी हासिल होगी, जब हिंदू जो है वो हिंदू नहीं रहेगा, इन व्हाट सेंस, नॉट इन रिलीजियस सेंस, बल्कि वो अपने आप को पाकिस्तान का एक शहरी तस्वर करने लग जाएगा। जब उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे, जब उसको हर तरह की आज़ादी अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त मिलेगी, तो फिर हिंदूज़ जो हैं वो अपने मज़हब की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि वो रियासत की तरफ देखेंगे। और फिर रियासत के दूसरे लोगों के साथ जो कि मेजॉरिटी में होंगे, उनके साथ मिल के दे वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, दे वुड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, बिकॉज उनको ओननेस दी जाएगी इन द कंट्री, उनको उस मुल्क का शहरी बनाया जाएगा। और जब वो उस मुल्क के शहरी बनेंगे तो उनके राइट्स भी इक्वल होंगे। तो ये मुस्लिम हिंदूज़ का जो डिफरेंस है वो इट वुड सीज टू बी देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गर्ल्स? यहाँ पे एक चीज़, क्योंकि वी हैव अ क्वेश्चन एट द एंड अबाउट इट, कि कायदे ने ये क्यों कहा था कि मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ वुड सीज टू बी हिंदूज़। ये नहीं था कि वो मतलब ये जो मज़हब है उसका फैलाव रुक जाएगा। उनके कहने का मकसद था कि हम रिलीजन सेंस में अगर बात ना करें कि ये हिंदू है और मुसलमान है, हम इस सेंस में बात करें कि ये पाकिस्तानी हैं। और जब पाकिस्तानियों को हर तरह के हकूक़ हासिल होंगे विदाउट दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, और विदाउट दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, दे वुड बी कंसिडर्ड पाकिस्तानीज, देन द रियल प्रोग्रेस that continues. Well, gentlemen, I don't wish to take up any more of your time, and thank you again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play, without any, as is put in the political language, prejudice or ill will, in other words, partiality or favoritism. My guiding principles will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. अब उन्होंने क्या कहा? He said that I don't want to take much of your time, and he wanted to thank again to the people who had been there, and he also taken the support of the people that जो थे, and then he told them that he would be working on the principles of justice and fair play. ठीक है, कि वो हमेशा अगर रहनुमाई करेंगे तो लेंगे तो इन चीज़ों से लेंगे। कहते हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि जो प्रेजुडिस है, बाइस्ड होना है, या इल विल है, नफ़रत है, बुग़्ज़ है, पार्शियलिटी है, किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाना, या कुर्बा परवरी है, और इन सब चीज़ों को ही वुड नॉट फेवर ऑल दीज थिंग्स। He would work on acting on these principles of justice and fair play. And then he said that I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के लोग हैं, ये जो पाकिस्तानी हैं, with their cooperation, with their support, he wanted to see Pakistan to progress and to flourish and to be the greatest nation of the world. So girls, let's finish this chapter. This is vocabulary, and the meanings are given over here. And thank you very much for today, and I will upload your objectives today on your WhatsApp group.